Okay, students, is the screen is visible to you all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, sir. okay. Yes, sir. Chalo, it's good. We are going to get class for computer. I think from half yearly examination onwards, you actually didn't have the computer classes. We are going to start with the topic from which we have left in previous class. In previous class, we are discussing. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can anyone tell me in previous class how much portion we have covered of Microsoft PowerPoint 2010 second? Anyone? See, this topic is covered changing background color of a slide and inserting header footer, inserting pictures from file, inserting images from clip art. I think all these topics are already covered and setting image as watermark. So I'm going to give you a quick recap of the entire process. So first of all, suppose we want to work in MS PowerPoint. So at that time we need to open PowerPoint. So I'm writing Power PNT in my computer and MS PowerPoint will open. When we open MS PowerPoint, so either we can choose the previously created slide or we can create a new slide by clicking on blank presentation. So I'm clicking on blank presentation and this will create a new PowerPoint presentation. Now, whenever we want to work in MS PowerPoint, so this particular slide, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, this numbered as 1 is the title slide. And if we want to add more slides, so at that time, we need to click on the new slide button, or alternatively, you can say Control plus M is the shortcut to create the new slide. So I'm pressing Control plus M to create a new slide. So see students, this slide is what? Title slide, and this slide is title and content slide. So I think the difference between all the slide types you are already cleared. And if you want to change the layout of any slide, so you can go to the layout option, and here all these options are available from which you can choose. I think it is visible. Student, please reply. Yes, Yes, sir. sir. Title slide, Visible. content, Yes, sir. section header, Sir. to content, comparison, title only, blank, content with caption, etc. So these are the different slide types which you can choose. So these topic already we have covered. So suppose I'm creating a slide, MS PowerPoint. I'm writing MS PowerPoint, and here I'm writing my name. And on the very first slide, I'm writing PowerPoint and some lines about it. Ki MS PowerPoint is a presentation software. ठीक है, मैंने इतना लिख दिया. Now, if you want to change its design, you need to go to the design tab and select the appropriate design from here. The design will be applied from it. ये जो लोग drawing कर रहे हैं, please stop doing that. स्मिता सिंह, तो जिन्होंने ड्रॉ किया पहले इसको तुरंत रिमूव कर दो बच्चे. दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि देखो हमें पता चल जाएगा किसने किया, फिर मतलब
ठीक है, दैट इज नॉट गुड। तो फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द थीम जो आपको अच्छा लगता है, जो विजिबल आपको हो। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में गाइडलाइंस टू क्रिएट प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था। यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर टॉपिक टू क्रिएट योर प्रेजेंटेशंस। ये मैंने आपको गाइडलाइंस पहले बताई थी। आपको अगर आपने किसी ने भी वो क्लास मिस की है तो दैट इज अवेलेबल इन माय वीडियो सेक्शन ऑन यूट्यूब। प्लीज गो एंड वॉच दैट आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर। तो आई एम सेलेक्टिंग दिस वन। तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। नाउ अब अगर हमें और स्लाइड्स ऐड करनी है तो वी जस्ट नीड टू प्रेस कंट्रोल एम एम एम, द न्यू स्लाइड विल बी क्रिएटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट व्यूज हैं आपकी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल व्यू है, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में ये आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब इससे आप स्लाइड को ऑर्डरिंग कर सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो और फिर उसके बाद ये रीडिंग व्यू होता है, ठीक है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। देन ये आपका वेल नोन स्लाइड शो व्यू। तो ये सारे डिफरेंट व्यूज होते हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं आपके इस चैप्टर पे। तो इन दिस चैप्टर द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज गिवन हियर इज, बहुत अच्छा, ये कौन है बच्चा? स्टूडेंट्स जो लोग जुड़े हुए हैं अपना ऑडियो ऑफ रखिए। जब आपसे कहा जाए तब आप अपने ऑडियो को ऑन कीजिए एंड यू कैन रिप्लाई। तो पहली टॉपिक थी आपकी एडिंग न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, और अल्टरनेटिवली यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एम। और अगर आप ये चाहते हो कि जो स्लाइड हम क्रिएट कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर लेआउट का हो, तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड के नीचे, ये देखो न्यू स्लाइड बटन है, इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो हेड है। यू कैन क्लिक ऑन इट एंड अ लिस्ट ऑफ different layouts will open and you can select any of the layout from here. तो जैसे मान लीजिए मैंने अगर टाइटल कंटेंट विद कैप्शन चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वाली स्लाइड हमारी इंसर्ट हो जाएगी। एंड आई थिंक इट इज कवर्ड इन प्रीवियस क्लास। नाउ मॉडिफाइंग अ स्लाइड लेआउट, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर मान लीजिए यही स्लाइड है, ये पर्टिकुलर स्लाइड है, इसको सिलेक्ट किया, लेआउट में गए, और लेआउट में अगर हमने कंपैरिजन सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली देखिएगा ये जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगा और ये कंपैरिजन लेआउट का स्लाइड हमारा आ जाएगा। Then after moving forward, the next topic is working in slide shorter view, which I have already explained. You just need to click on the slide shorter view button. The presentation will be open in slide shorter mode, and here आप जैसे मान लीजिए इस स्लाइड को इस स्लाइड के बीच में मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको पकड़िए और ले आके ड्रॉप कर दीजिए। यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड द स्लाइड विल बी रीअरेंज्ड as per your requirement, as per your wish. And if you want to copy the slide, तो जैसे मान लो स्लाइड नंबर 5 और 6 दोनों को हमें कॉपी करना है तो select it and press Ctrl plus T. The slide will get copied and then click anywhere in between the slide where you want to paste it. Just click it and press Ctrl plus V option. The slides get pasted and ऐसे ही आप कट पेस्ट भी कर सकते हो। कट पेस्ट करोगे तो मूव होगा। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर होगा एंड आई थिंक यू ऑल ऑलरेडी हैव वर्कड ऑन इट। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट टिल नाउ? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. And deleting slide? No, sir. No, okay. No, Good. sir. Now next thing is changing background color of a slide. तो देखिए जब आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो यू जस्ट फर्स्ट नीड टू गो टू द डिजाइन टैब। तो आप यहाँ पे डिजाइन टैब में जाएंगे और डिजाइन टैब में देखिए ये आते हैं आपके थीम्स, यहाँ आता है आपके वेरिएंट्स। जैसे थीम्स और वेरिएंट में बच्चों देखो डिफरेंस क्या है कि यहाँ से हम थीम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ये अगर हमने एक थीम ले लिया तो ये एक थीम हो गया। अब उस थीम में डिफरेंट कलर वेरिएंट्स होते हैं। देखो थीम सेम रहेगी, ये ग्रीनिश है, यहाँ पे ब्लूइश हो गया, यहाँ पे पिंक हो गया, यहाँ पे दूसरा कलर आ गया, और भी इसमें
फॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हो, इफेक्ट्स आप लगा के अलग अलग वेरिएंट्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो। तो अगर आपको थीम लेना है तो आप यहाँ से लेंगे, और उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है कलर में, फॉन्ट में, तो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ वेरिएंट्स ऑप्शन। नाउ we need to change the background color. So for that we need to click on the format background option which is present here. So I'm clicking on it. When you click on it, format background option will open. तो जैसा आप अपने बुक में देख रहे होगे उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इस साइड में, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे फिल ऑप्शन आ रहा है, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। तो अगर आपको कलर चेंज करना है तो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन सॉलिड फिल हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो कलर जो ऑप्शन है, कलर ऑप्शन पे जाते हैं और कलर ऑप्शन में जाके कोई भी कलर हम चूज कर लेंगे जो हमें चाहिए। जैसे मान लो हमने ये कलर ले लिया, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये जो बैकग्राउंड है वो हमारा पिंक कलर का हो गया। इसकी जगह पे अगर मान लो हम ग्रीन बैकग्राउंड ले लेते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है। लेकिन बच्चों देखो, बैकग्राउंड मस्ट बी इन लाइटर शेड so that the characters that you have typed in front of the presentation will be appear properly. तो जैसे मान लो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का है, और अगर आपने क्या किया, ग्रीन ही बैकग्राउंड ले लिया, तो फिर जब हम प्रेजेंटेशन इसका करेंगे तो उस केस में ये थोड़ा सा ब्लर आएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, जो कैरेक्टर्स है वो भी छिप जाएंगे। तो फॉर दैट हम करते क्या है कि जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड हम लेते हैं कि जो उस पे कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े उभर के आए, सामने दिखे। तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो थोड़ा डार्क कलर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी दिखा सकूं। तो मैंने यहाँ से कलर ग्रीन सेलेक्ट किया है, ट्रांसपेरेंसी 0% है। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करोगे, जैसे 100% कर दिया तो आप देखोगे पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड में कलर हमने रखा था वो हट गया। अगर हम ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो कला है वो मतलब वो ज्यादा विजिबल हो रहा है। तो आप इस तरीके से स्लाइडर से अपनी ट्रांसपेरेंसी को मैनेज कर सकते हो। तो आई थिंक इट इज क्लियर। एंड नीचे आप देखेंगे तो ये दो ऑप्शन आते हैं, अप्लाई टू ऑल एंड रीसेट बैकग्राउंड। तो अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का यूज किया जाता है अगर ये, जैसे मान लो हमने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की दैट इज डन on the very first slide only, and if we want that कि the same transformation will be achieved on all the slide, then we need to click on apply to all button। तो जैसे मैंने apply to all किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये सारे कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स विजिबल हैं, यहाँ पे भी आ गए। और अगर हम यहाँ पे हम नहीं चाहते तो कंट्रोल Z करके हम अनडू कर सकते हैं। एंड रीसेट बैकग्राउंड बटन का यूज क्या होता है कि अगर हम रीसेट बैकग्राउंड बटन यूज करें तो जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ से हट जाते हैं। तो दिस इज अ वे बाय विच यू कैन डू ऑल दीज स्टफ। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? No, sir. Sir. No, sir. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इसी में हम ग्रेडियंट फिल की भी बात करेंगे। तो ग्रेडियंट फिल देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट नीड टू सेलेक्ट द ग्रेडियंट फिल ऑप्शन। नाउ यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट्स होते हैं जिनमें से आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो हमने ये कलर सेलेक्ट किया, अब देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, और यहाँ पे देखो पिंक है, यहाँ पे थोड़ा लाइट पिंक है। तो कलर एक ही होता है, लेकिन जो डिफरेंट कलर शेड्स होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जब आप ग्रेडियंट फिल का यूज करते हो। यहाँ पे टाइप में आप रेडियल की जगह पे रेक्टेंगुलर ले सकते हो, जैसे रेक्टेंगुलर ग्रेडियंट फिल किया, पाथ ले सकते हो, ठीक है, या शेड फ्रॉम द टाइटल ले सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच यू कैन चूज, अपने ग्रेडियंट फिल के लिए आप ले सकते हो यहाँ से। देन आफ्टर ग्रेडियंट को आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप उसको स्टॉप और ऑन कर सकते हो, सेट कर सकते हो। देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है, इसको आप जैसे जैसे बढ़ाओगे इस साइड में
तो आप देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो दूसरे तरीके से चेंज होता रहेगा। देन कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सपोज करो ग्रीन कलर ले लिया, डार्क ग्रीन ले लिया, तो वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप कोई और कलर ले सकते हैं। यहाँ पे आप ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो एज पर योर विश यू कैन सेलेक्ट द कलर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पोजीशन। तो पोजीशन आपने 45% ये जो इसका हम ड्रैग कर रहे थे, उसको आप यहाँ पे पोजीशन टैब से भी आप हैंडल कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट, जो लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है ट्रांसपेरेंसी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर को मूव करके आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा या घटा सकते हैं। एंड ब्राइटनेस को अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। So these are the different options by which you can change the background color of any presentation. And once you have done, that means you have done with changing the presentation background of the presentation, and you want to apply to the all slide, then just need to click on the apply to all button and then click on the save button. Now the transformation which we have done is now saved with our presentation. तो ये बच्चों ये तरीका है जिससे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आफ्टर इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर यूजिंग ऑटोमेटिक लेआउट ऑप्शन, तो आप इसका यूज करके हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में। तो हेडर फुटर ऐड करना आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप ऑफ बटन में हेडर एंड फुटर ऑप्शन आता है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे स्लाइड है, नोट एंड हैंड आउट है, तो स्लाइड में गए। अगर आपको डेट एंड टाइम लेना है तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम पे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अपडेट ऑटोमेटिकली आपने कर लिया। अगर आपको स्लाइड नंबर भी चाहिए तो स्लाइड नंबर आपने ले लिया, और फुटर में भी आपको चाहिए तो फुटर यहाँ पे करके यहाँ पे कोई टेक्स्ट दे दिया कि जैसे मैंने यहाँ पे दिया आर्मी पब्लिक स्कूल कुंडराघाट, and then click on apply to all button. The header and footer will be applied. So these are the way by which we can do the same, students. यहाँ पे देखो ये हमने जो बैकग्राउंड रखा है उसके कारण ये उतना विजिबल नहीं हो रहा है। मैं सॉलिड कलर में आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल कुंडराघाट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आज की डेट आ रही है, ये 12/1/2020 मीन्स ये देखो ये पहले mm देन dd देन YYYY फॉर्मेट है। तो पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट एंड देन ईयर। So this is the way by which you can insert header and footers in our presentation, students. Now moving forward, next thing is inserting pictures from file. So first of all we need a picture, then we can add a picture to the presentation. So for that I'm going to download a picture. तो उसके लिए मैंने गूगल ओपन किया और गूगल पे जाके मुझे कोई भी पिक्चर ऐड करना है, तो मैंने दे दिया MS PowerPoint और इसका इमेज टैब में गए और यहाँ पे आप देखो ये इस तरीके से पिक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। या हमें APS का लोगो ले लिया है तो APS लोगो हमने यहाँ पे ले लिया। APS की जगह पे मैं दे रहा हूँ आर्मी स्कूल लोगो। ये आ गया, ये आपके आर्मी स्कूल का लोगो है। इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक करते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव इसको हम करते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। और डेस्कटॉप पे मैंने इसका नाम दे दिया APS लोगो डॉट JPG, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड क्लिक ऑन सेव बटन। नाउ यू स्टूडेंट यू कैन सी ये जो APS लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। अब मैं इस लोगो को, ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। अब मैं इस लोगो को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट देखो एक तरीका ये है कि इसको अगर हम ड्रैग करें और ले आके अपने प्रेजेंटेशन में ड्रॉप कर दें तो भी वो जो लोगो है वो हमारे प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द इंटेंडेड वर्क विच वी वांट टू डू। ये जो लोगो हमारा आया है ये अगर हम किसी अपने कोई रिटन टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हैं तो आप देख सकते हो कि वो जो टेक्स्ट था वो अब हमारा पीछे बैकग्राउंड में चला गया।
That means the image which we have inserted here is now on the foreground. If we want to place the image and at background of the page, so at that time we just need to click on picture or texture fill option, and in picture or texture fill option, click on picture source and click on insert option. And when you click on insert option, from a file, online picture, from icons, ये तीन option आएंगे. Just need to click on from a file option and then go to the desktop and search for the APS logo.jpg. Select it and press open button. Now you can see the this particular logo is now placed in the background of the presentation. Now I am changing its transparency value. तो आप इसकी transparency value को change करके इसको थोड़ा सा blur कर सकते हैं, जिससे ये background में रहे भी और इसके ऊपर जो characters हैं वो आपको visible भी हो. तो बच्चों, I think it is visible, the background as well as the foreground content. You can see na? Yes, Please sir. reply immediately. Okay. So this is the way by which we have added a picture in the background of the presentation, and at the same time we can see the characters that we have typed in front of it. Next thing is offset setting. तो offset setting का use करके हम इस picture को left right में move कर सकते हैं, top bottom में move कर सकते हैं. For example, अगर हम यहाँ पे देखो, इसको अब देखो यहाँ पे हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं. अगर इधर हम क्लिक करेंगे तो दिस विल बी मूव्ड इन राइट. अगर हम यहाँ पे टॉप पे जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इधर करेंगे तो ये देखो टॉप कवर कर रहा है, ये बॉटम. इस तरीके से हम इसको पोजीशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें कहाँ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसका पोजीशन सेट कर सकते हैं. एंड वंस वी हैव डन, क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल ऑप्शन. When you click on apply to all option, automatically the same thing will be applied to every presentation. Student, one thing you need to remember, कि when you go to the fill option, then solid fill, gradient fill, picture texture fill, pattern fill, इनसे पहले आप देखोगे तो ये जो options दिख रहे हैं, ये जो button दिख रहा है, what is the name of this button? Can anyone tell me? ये जो circular buttons हैं, what is this? Radio button. Okay, good. So radio This is button. radio button. And in case of radio button, we can select only one option. I think it is clear to you all. In radio button, we can select only one option. So either we can fill the background with solid fill or with gradient fill or with picture or texture fill or with pattern fill. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम एक ही स्लाइड में सारे इफेक्ट को यूज करें. या तो हम सॉलिड फिल करेंगे, या हम ग्रेडियंट फिल करेंगे, या हम पैटर्न फिल करेंगे. तो इट इज अप टू यू कि आप okay, moving forward, there was an announcement, so I have to listen. Now moving forward, the next thing which is given here is inserting pictures from file. I think ये आप लोगों को clear हो गया होगा. Now inserting images from clip art. तो insert tab में जाके clip art option and inserting image from internet. ये I will explain. कि suppose you need to insert an image and you don't have it. So you need to click on insert button and then click on picture online. When you click on this button, you just need an active internet connection. Proper internet connection is required. वैभव शियाग, हाँ मत ड्रॉ करो बच्चे. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑनलाइन पिक्चर्स में हम आ गए. ये Bing, powered by Bing है. Bing is a search engine. I think all of you are aware with it. Now अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन में जाता हूँ
और बैकग्राउंड ऑप्शन में अब देखो बहुत सारे बैकग्राउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट बटन प्रेस किया। द फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे किया है वो इंसर्ट टैब पे क्लिक करना, देन ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करना, इंटरनेट कनेक्शन अगर था हमारे पास प्रॉपर, देन क्लिक ऑन द एनी, सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन लाइक जैसे मैंने यहाँ पे फायरवर्क्स सेलेक्ट कर लिया तो फायरवर्क्स के इमेजेस आ जाएंगे, इसमें से आपने कोई भी एक फायरवर्क ले लिया एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। फर्स्ट द पिक्चर इज डाउनलोडेड इन योर कंप्यूटर एंड देन इट विल बी placed in background of the presentation. So the internet connection is might be slow, so it is taking few seconds. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फायरवर्क्स आ गए हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा लो करेंगे तो आप देखोगे फायरवर्क्स पूरा प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कोई इमेज चाहो तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी यहाँ पे लगा सकते हो एज पर योर विश, एंड वंस यू हैव डन यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल टू अप्लाई द सेम थिंग टू एवरी स्लाइड। एंड अगर आपको ये लगता है कि अलग अलग प्रेजेंटेशन पे डिफरेंट होने चाहिए तो आप अलग अलग प्रेजेंटेशन अलग अलग स्लाइड पे जाके नेक्स्ट डिफरेंट आप बैकग्राउंड सेलेक्ट भी कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग इमेज एज वाटरमार्क। सेम थिंग जो अभी हमने इमेज सेट किया है वो एज अ वाटरमार्क भी हो गया कि अगर हम कभी भी इसको स्लाइड को प्रिंट करेंगे तो वो जो इमेज हमारे बैकग्राउंड में है वो भी उसके साथ प्रिंट होगा एंड इट शोज दैट कि आवर डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू whom. नाउ इंसर्टिंग शेप्स इन अ स्लाइड, तो ये भी बच्चों आप लोगों ने जरूर किया होगा कभी ना कभी। तो अगर मान लीजिए हमें शेप इंसर्ट करना है तो उसके लिए जो हमारा लेआउट होना चाहिए वो सबसे बेटर हमारे लिए रहेगा कि वी चूज द ब्लैंक लेआउट, और यहाँ से आके मैं सॉलिड फिल सेलेक्ट करके और सब हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये जिसने ड्रॉ किया है उसको भी हटा लो बच्चे। नाउ वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, एंड इन इंसर्ट टैब यू नीड, if you want to draw something, if you want to have something on screen, so at that time you need to click on the shape option. When you click on the shape option, the list of options will open like recently used shape, lines, rectangle, etc. तो सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। फिर अगर मुझे यही एक और रेक्टेंगल चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यही एक रेक्टेंगल एक और चाहिए तो मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और फिर इसके सामने ले आके यहाँ पे लगा दिया और फिर एक बार पेस्ट किया और फिर उसको ठीक उसी के सीध में यहाँ पे लगा दिया। नाउ अब मैं कुछ एरो यहाँ सेलेक्ट करूंगा, तो एरो लेने के लिए मैं फिर यहाँ जाता हूँ और मैं सिंपल एरो भी ले सकता हूँ और बॉर्डर्ड एरो भी यहाँ से ले सकता हूँ। तो आई हैव टेकन दिस वन and then copy it and paste it, and then the arrow will be placed like this. अब देखिए, अब मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि इन एरो पे या इन बॉक्सेस में अगर हमें कोई नेम लेबल करना है तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट एंड आई एम राइटिंग इनपुट, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ दे दिया हमने प्रोसेस, एंड यहाँ पे सेलेक्ट किया और हमने दे दिया आउटपुट। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ इनका कलर्स चेंज करना तो इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक नया कॉन्टेक्चुअल टैब आ जाएगा जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द शेप स्टाइल ऑप्शन एंड सेलेक्ट द appropriate color as per your requirement and the color will be changed accordingly. So you can see students the color is changed now and अगर आपको इसका width चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, जो भी ड्रॉ करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेसिक हमने डायग्राम बनाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इस बॉक्स को मूव करें तो आप देख सकते हैं बाकी जो डायग्राम है वो ऐसे ही है और ये जो बॉक्स है वो हमारा मूव हो गया। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम इन सारे के सारे सिंबल्स को, सारे के सारे शेप्स को एक साथ एसोसिएट कर दें, तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, फॉर दैट वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट, पहले आप कंट्रोल बटन प्रेस करोगे और होल्ड करोगे एंड क्लिक ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट
to be selected, and then click on right click and then select group option, और ग्रुप ऑप्शन में जाके ग्रुप ये ऑप्शन जो है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। अब देखोगे यहाँ पे ये जितनी भी हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट थे वो ग्रुप हो गए। अब आप इसको एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ कहीं अगर रीएलोकेट करना चाहते हो आप उसको मूव कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप उसको घुमा सकते हो। तो ये जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स थे वो एक साथ अब ग्रुप हो गए। अब आगे आपको कभी ये लगता है कि नहीं 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 ये आउटपुट नीचे होना चाहिए और ये जो एरो है वो इधर होना चाहिए, अब उस केस में आप फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, वेट 1 मिनट, हाँ, सेलेक्ट एंड देन राइट क्लिक एंड देन ग्रुप में जाएंगे और फिर अनग्रुप कर देंगे। जब आप अनग्रुप कर दोगे तो उसके बाद आप उसको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। तो ये तरीका आप देख लीजिएगा, आप लोग खुद प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके जरूर देखिएगा कि आप किस तरीके से ग्रुप एंड अनग्रुप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू यू ऑल? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the way by which you can group and ungroup items or things. Now moving forward, नेक्स्ट है हमारा यूजिंग फिल इफेक्ट। तो फिल इफेक्ट ये तो अभी आपको बता ही दिया है मैंने आपको, पिक्चर फिल, ग्रेडियंट फिल, तो ये आप कर सकते हैं और ये मैं पहले बता भी चुका था। फिर रोटेटिंग अ पिक्चर और शेप, तो रोटेट करने में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। जब भी आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट sir. करोगे तो उसके ऊपर आप देखो यहाँ पे ये बन के आ जाएगा, ठीक है, और इस पे आप पकड़ के और इसके बाद इसको जैसे चाहो आप रोटेट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर विश, ठीक है। तो दिस वे यू कैन रोटेट एनी ऑब्जेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा एडिटिंग एन इमेज। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, इमेज को एडिट करना। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे एपीएस का जो लोगो है इसको यहाँ पे लेके आता हूँ आपके प्रेजेंटेशन में और इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो ये जो हमारा एपीएस का लोगो है वो यहाँ पे आ गया। थोड़ा अच्छा इमेज चाहिए हमें, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पिक्चर में जाता हूँ, ऑनलाइन पिक्चर पे चलते हैं, इंसर्ट में जाके और बर्ड्स की कुछ पिक्चर्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जहाँ पे 2-3 बर्ड्स, कुछ अच्छे बर्ड्स दिख रहे हो। चलो यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। तो ये देखो बच्चों, ये इमेज हमारा यहाँ आ गया। इसको कॉपी करते हैं, किसी और स्लाइड पे लेके चलते हैं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर लूंगा। ये भी देखो एडिटिंग का एक तरीका है कि जैसे मान लो ये पिक्चर आपने ऐड किया, यहाँ पे देखो इस हैंडलर को पकड़ के इधर करोगे तो ये हॉरिजॉन्टली स्केल होगा, अगर यहाँ से आप पकड़ के नीचे ड्रैग करोगे तो ये वर्टिकली स्केल होगा। एंड इफ यू क्लिक ऑन द डायगोनल पॉइंट एंड देन यू ड्रैग, तो इट विल बी इंक्रीज इन बोथ ऑफ द डायरेक्शंस। नाउ तो जब भी आपने कोई पिक्चर इंसर्ट किया और फिर उस पिक्चर पे डबल क्लिक करो, तो व्हेन यू क्लिक डबल क्लिक ऑन इट, अगेन अ फॉर्मेट टैब विल अपीयर। जैसे मान लो हम पिक्चर के कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे हेल्प तक है ये टैब में। अब हमने पिक्चर पे डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब आ गया। अब इस फॉर्मेट टैब में आप देखेंगे रिमूव बैकग्राउंड